Hello viewers, welcome back to my channel. So in this video we will see set exam preparation, some PY quiz which is asked in the previous examination. I picked the questions from another examination also for the practice. So let's start with the first question. How many types of languages in drama are distinguished by the Bharat Muni in नाट्य शास्त्र? तो नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि का इंडियन एस्थेटिक में जिसे हम पढ़ते हैं उसका डिस्टिंग्विश या डिवाइडेशन है भरत मुनि ने 4 पार्ट्स में किया है. इट इज fragmented in the 4 parts. So the option number A is correct here. Okay. Let's see next. Identify the correct pair. Shakespeare's As You Like It correct है. Marlowe Every Man in His Humor no. Dryden The Indian Queen. Harold Pinter The Birthday Party. So the option number A is correct. C is also correct. D correct. And so A, C and D is correct here. So A, C and D, option number A is correct. Next question. T.S. Eliot poetic play Murder in the Cathedral is the base on the martyrdom of whom? St. Thomas Becket, Sir Thomas More, St. Paul, St. Augustine. So the correct option is A, St. Thomas Becket. Next question. Name the following or name the English dramatist who won Nobel Prize for Literature in 2005. English dramatist जिन्हें 2005 में Nobel Prize मिला है and is placed among the pioneer of the theatre of the absurd with notable play like the Caretaker या Homecoming उन्होंने लिखा है. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. वो हेरोल्ड प्रिंटर है जिन्होंने बर्थडे पार्टी भी लिखा था और उन्हें 2005 में एक क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था और वो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट है. अब्सर्डिज्म अब्सर्ड ड्रामा के लिए भी वो जाने जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल है ये. विलियम कॉन्ग्रीव ने इसे लिखा था. रेस्टोरेशन पीरियड में आती है ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स और इसका ओपनिंग सीन कहाँ पे है? ग्रीन हाउस, चॉकलेट हाउस, येलो रूम, कैंडी हाउस. The correct option is chocolate house. B is correct. Next देख लेते हैं हम. Find out the play not written by Tennessee Williams. Cat on the Hot Tin Roof, A Streetcar Named Desire, The Hairy Ape, The Glass Menagerie. तो A, B and D ये सभी टेनेसी विलियम के वर्क है. हेरी एप जो है ये उनका वर्क नहीं है, ये वर्क है यूजिन ओनेल का. नेक्स्ट देखते हैं. हेनरिक इब्सन वॉज एन. हेनरिक इब्सन हमारे नॉर्वेजियन प्ले राइट है. So the correct option is A. Next, Manjula Padmanabhan's play Harvest deal with the issues related to organ trade, agriculture growth, communalism या international conspiracy. तो correct option हमारा हो जाएगा organ trade के लिए ये डील करता है. या मंजुला पद्मनाभन्स play Harvest deal with the issues related to organ trade. Next. The term third theatre is associated whom? 58 question. महेश दत्तानी, गिरीश कर्नाड, बादल सरकार और आर्यन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर. तो थर्ड थिएटर जो है ये बिलोंग करता है बादल सरकार से. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. मिल्टन्स एरोपैजिटिका. मिल्टन्स एरोपैजिटिका वाज पब्लिश इन विच ईयर? तो मिल्टन का एरोपैजिटिका पब्लिश हुआ था 1644 में. नेक्स्ट देख लेते हैं हम. Who among the following is a cavalier poet? रिचर्ड लवलेस. मोबाइल देनो. तो ये जो है Who among the following is a cavalier poet? रिचर्ड लवलेस, एंड्रू मार्वल, जॉन मिल्टन, सर फिलिप सिडनी. तो हमारे जो कैवेलियर पोएट है वो है रिचर्ड लवलेस. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 59. The following lines are told by the father to his daughter in the play. We two alone will sing like a birds in a cage. When thou dost ask me blessings, I will kneel down and ask for this forgiveness.
Identify the play from the choices given below. Hamlet, Polonius or Ophelia? Oedipus the Race, Oedipus to Antigone? ओके, आई थिंक थोड़ा सा वॉइस नहीं पहुंच रहा है. हाँ, सो द करेक्ट ऑप्शन इज Hamlet. Polonius, no. It is the correct option is King Lear. Lear और Cordelia के बीच का ये dialogue है. Which of the following option is correct? Iambic, a stressed syllabus followed by unstressed syllabus. Dactylic, two unstressed syllabus followed by a stressed syllabus. Proctic, an unstressed syllabus followed by stressed syllabus. तो करेक्ट हमारा हो जाएगा स्पॉन्डी. स्पॉन्डी जो है दो स्ट्रेस सिलेबस सक्सेसफुली फॉलो होते हैं. Next question. Which of the following is not an occasional poetry? Lycidas, Iphitalemion, To Love Song of J. Alfred Prufrock, The Charge of the Light Brigade. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि ये भी ऑकेजनल पोएट्री है, ये भी ऑकेजनल पोएट्री है एंड ए भी. Okay, next. Who defined the poetry in the following word? Poetry is the record of the best and happiest moment of the happiest best minds. वर्ड्सवर्थ का तो नहीं है, वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन हमें मालूम है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग. मैथ्यू आर्नर कहते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इज अ पोएट्री. पीबी शेले का ये डेफिनेशन है. पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट इन द हैप्पीएस्ट बेस्ट माइंड्स, क्योंकि एस्ट्री कोलरिज तो अपनी पोएट्री वर्क में बात करते हैं फैंसी इमेजिनेशन की. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्रेवयार्ड पोएट? जॉन किट्स, एडवर्ड यंग, William Blake, Matthew Prior. So the correct option is B. Edward Young is a graveyard poet. Which among the following is not the part of T.S. Eliot's fourth portrait? Ash Wednesday, East Cocker, Bert Norton, The Dry Salvages. So the correct option is A. क्योंकि ईस्ट कॉकर, बर्ट नॉर्टन, द ड्राई सैल्वेजेस और एक चार ऐसे दो फोर पोर्ट्रेट टीएस इलियट का वर्क है. और चौथा जो इसका पार्ट है, ईस्ट कॉकर, बर्ट नॉर्टन एंड द ट्राई सैल्वेज, चौथा पार्ट आप मुझे कमेंट करके बताओ. ओके, लिटिल ग्लीडिंग है वो, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको. लिटिल ग्लीडिंग है, इसको आप पढ़ो. इसकी लाइन भी पूछी गई है. लास्ट बार सेट एग्जाम जो हुआ उसमें पोएम्स पूछी गई थी टीएस इलियट के फोर पोर्ट्रेट की. आई थिंक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में ये प्रिस्क्राइब भी है पोएम. When I was doing MA, there is a four portrait was prescribed in the syllabus of MA. Now I don't have the idea. Now next we will see which of the following is not correctly matched. Octava Rima 8 line. Okay, correct है ये. Rima Royal में 7 line होते हैं, ये भी बराबर है. Terza Rima में 3 line होते हैं, इसीलिए उसे Terza Rima कहते हैं, ये भी बराबर है. Now let's see. Spenserian stanza 10 line, ये गलत है. Spenserian stanza में 9 line होती है, 10 नहीं. नेक्स्ट, हु रोट द पोएम entitled फर्न हिल? फर्न हिल किसका वर्क है? टेड ह्यूजेस नो, थॉमस गन नो, फिलिप लार्किन नो, डायलन थॉमस का वर्क है ये, द फर्न हिल. नेक्स्ट, फिगर ऑफ स्पीच विच विद द पार्ट स्टैंड फॉर द होल एंड द होल. आपको फिगर ऑफ स्पीच आनी चाहिए, थोड़ा ग्रामेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, थोड़ा ना एक्चुअली बहुत सारा ही ग्रामेटिकल नॉलेज होना चाहिए. उसमें आपको फिगर्स ऑफ स्पीच आनी चाहिए. देखो, नाउन से रिलेटेड, एडजेक्टिव से रिलेटेड भी क्वेश्चन, क्योंकि हमारा पार्ट है इंग्लिश लिटरेचर में, हम लिंग्विस्टिक स्टडी या लैंग्वेज के बारे में हमको एक सेक्शन दिया हुआ है. सो वी हैव टू मस्ट स्टडीड अबाउट व्हाट इज मेटोनॉमी, व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, व्हाट इज अपोस्ट्रोफिया, लिटोइट्स और द सिनेक्टकी. सो द हमारा ऑप्शन है ये करेक्ट, सी, सिनेक्टकी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश वर्ड नॉवल इज डिराइव्ड फ्रॉम, इजी था, नॉवेला से लिया गया है इंग्लिश वर्ड. ओके, विलियम समरसेट मॉगम इज एन इंग्लिश राइटर नोन फॉर हिज प्लेज एंड पोम्स, एसेज एंड स्टोरीज. Essays and stories and plays now. Okay, so the correct option is deal with the plays, novels and short stories. Next,
फॉरेस्टे सागा इज रिटन बाय, किसने लिखा है इसे? ये जॉन गाल्सवर्दी का फेमस वर्क है, ये हमें पता होना चाहिए। एटलीस्ट ऑल ऑथर्स और उनके वर्क्स ये हमें पता होने चाहिए, एटलीस्ट मेजर वर्क के नाम, उनके पब्लिकेशन, नोबेल प्राइज विनर, साहित्य अकेडमी विनर, बुकर प्राइज के विनर, ये सब अपडेट नॉलेज हमें होनी चाहिए एज अ इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट। इन अर्नेस्ट हेमिंग्वेज द ओल्ड मैन एंड द सी द सेंट्रल कैरेक्टर शैंटिगो, शैंटिगो कौन था? फ्रेंच सोल्जर, क्यूबन फिशरमैन, ब्रिटिश नाइट। इसको अगर अपने पढ़ा भी है ना तो आपको अंदाजे से बताइए क्यूबन फिशरमैन था, ना कि कोई नाइट या कैप्टन। आर.के. नारायण नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स इज पब्लिश इन, आर.के. नारायण का फर्स्ट नॉवेल है स्वामी एंड फ्रेंड्स और ये पब्लिश हुआ था 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉवेल द फॉरेनर इज ऑथर्ड बाय, फॉरेनर वर्क किसका है? तो ये अरुण जोशी का वर्क है। इंडियन राइटर्स में मैंने अरुण जोशी या अदर राइटर्स पे वीडियो बना रखी है, यू कैन वॉच ऑन माई चैनल in the playlist. Okay, so the Arun Joshi का वर्क है। Who has called Henry Fielding the father of the English novel? Dr. Johnson, Sir Walter Scott, Thomas Carlyle, Thomas Hardy। तो ये वॉल्टर स्कॉट ने कहा था फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल टू द हेनरी फील्डिंग। नेक्स्ट, हेनरी फील्डिंग्स नॉवल टॉम जोन्स इज ऑल्सो नोन एंड, तो टॉम जोन्स का पूरा अगर हम देखें तो वो है द स्टोरी ऑफ टॉम जोन्स द स्क्वायर, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग। सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। Next, which of the following prose writer wrote the history of the world during his imprisonment for 12.5 years in the Tower? किसने ये लिखा था? इसका करेक्ट ऑप्शन इज ए वॉटर रेले। Okay, next. According to the E.M. Foster, a society is a narrative of events arranged in their time sequence, whereas plot organized event according to the sense of casuality. E.M. फॉस्टर कहते हैं कि स्टोरी नरेट ऑफ इवेंट्स अरेंज किए जाते हैं टाइम सीक्वेंस से और प्लॉट ऑर्गेनाइज किया जाता है सेंस ऑफ कैजुअलिटी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1984 अ नॉवेल बाय जॉर्ज ऑरवेल इज द राइटर। 1984 अ नॉवेल बाय जॉर्ज ऑरवेल इज द राइटर्स, क्या है ये? रिस्पॉन्स टू द विनिंग नोबेल प्राइज, रिप्लाई टू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, वार्निंग अगेंस्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, वार्निंग अगेंस्ट द टोटलिटेरियनिज्म। ओके, totalitarianism. Okay, hard to pronounce. Next question. Regarding his work as a whole, who is known as a bell ringer, who is first called the church, author to the church. So it is the Philip Sidney is the correct option. So this is how remaining जो हमारे क्वेश्चन है हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में कर लेंगे। So we have done here the 84 questions.